Sandhan. All Gujarat integrated classroom. સેટેલાઇટ ના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Hello dear friends, welcome to the lecture series run by Sandhan that is related to English, and under that English literature and language. Today the topic of my presentation is Matthew Arnold as a critic. First of all, before I venture to this topic, let me introduce myself. I am Dr. Jinendra B. Jain. I belong to M.B. Patel Rashtrabhasha Arts and Commerce College, and the topic related to English of today is Matthew Arnold as a critic. So dear friends, I expect you to be very attentive while I am discussing and telling you something about Matthew Arnold. As you know that Matthew Arnold is rather more of a poet than a critic. But at the same time, it is also accepted and acknowledged by the readers, by the well-established literatures, that Matthew Arnold is not only an acknowledged poet, but he is also a well-accepted, highly acclaimed critic too. And now, what I mean to say is that let us evaluate Matthew Arnold as a critic. What contributions he has given to the criticism, particularly English criticism, on what basis he has been considered a great critic, on what principles he has been considered a great critic. In nutshell, before I venture onto this topic, in nutshell, in brief, let me tell you few well-established principles propounded by Matthew Arnold. In 1, 2, 3 points, I am putting these principles before you. First and foremost, what we are going to discuss in our discussion through PowerPoint presentation with the help of slides, that is 3 estimates: the grand style and his well-known touchstone method. So let us go to the slides, friends. The first slide before you says Matthew Arnold, who was born in 1822 to 1888. When I expand the same thing, he was born on 24th December 1822 and he died in 15th April 1888. He was a British poet and cultural critic. He was a bridge between Romanticism and Modernism. He was a versatile genius. Second slide says that he is also known as a critic. Why should I use also, the word also? Because he was a poet too. His well-known poem, Elegy, Thyrsis, is very well known,
encyclopedia.com says about Matthew Arnold and his criticism, his contribution to the field of criticism. So the line goes like, Matthew Arnold's criticism and creative works deals with the difficulty of preserving personal values in a world drastically transformed by industrialism, science and democracy. औद्योगिकरण, विज्ञान और लोकशाही से बहुत ज्यादा प्रभावित दुनिया को और उसमें जो वैल्यूज थे, उसमें जो मूल्य थे, उनको प्रिजर्व करने की बात, उन्हें सुरक्षित रखने की बात मैथ्यू आर्नल्ड ने की। और ये चीज को मद्देनजर रखते हुए encyclopedia.com ने उनके बारे में ये कहा। नेक्स्ट स्लाइड है मित्रों। ही इज नोन एज अ क्रिटिक। उन्हें आलोचक के रूप में जाना जाता है, एक विवेचक के रूप में जाना जाता है। क्यों? बिकॉज ही एक्सप्रेस्ड हिज ओरिजिनेटिव जीनियस। क्योंकि उन्होंने अपनी आलोचना में मौलिक बुद्धि को अभिव्यक्त किया। इन द फॉलोइंग क्रिटिकल राइटिंग्स, इन आलोचनात्मक लेखों में, लेखनियों में उन्होंने अपने ओरिजिनेटिव जीनियस को अभिव्यक्त किया। The study of poetry, the function of criticism at the present time, his theory of poetry and his views on criticism. And when we expand the views related to Matthew Arnold as a critic, we can say that Matthew Arnold was very much connected with social, cultural, educational, religious as well as literary improvements. Matthew Arnold किन चीजों से ज्यादा जुड़े हुए थे मित्रों? सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। और वो चाहते थे कि इन सब के ऊपर साहित्यिक परिवर्तन भी आए और सकारात्मक परिवर्तन आए। He saw degradation into which the society had fallen in his age. उनके युग में समाज का जो अधपतन हो रहा था, and it grieved him deeply. और ये चीज ने उन्हें बहुत वेदना दी, दुख पहुंचाया कि जिस हिसाब से उनके युग में समाज अधपतन की ओर जा रहा था। इन द विक्टोरियन एज देयर वॉज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ। विक्टोरियन युग में एक असामान्य विकास हो रहा था उद्योग का, और मटीरियल वेल्थ लोग बाग इकट्ठा करते जा रहे थे। भौतिक संसाधन, भौतिक दौलत इकट्ठा करते जा रहे थे। एंड इट लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ रिलीजियन एंड कल्चर। और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने धर्म की और संस्कृति की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। Matthew Arnold wanted to lift man from this degenerated condition. मैथ्यू आर्नल्ड व्यक्ति के इस अधपतन की परिस्थिति में से उन्हें ऊपर उठाना चाहते थे। एंड देयरफॉर ही एडवोकेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज। और यही कारण था कि आर्नल्ड ने दो चीजों पर बहुत भार रखा, उनकी वकालत की, और वो दो चीजें थीं कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज। सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर उन्होंने काफी जोर दिया। और साथ ही फॉर पोएट्री द आइडिया इज एवरीथिंग। उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म पर जाने से पहले, बिफोर propounding his principles and theories related to criticism, what he said first is that for poetry the idea is everything. कविता के लिए विचार ही सब कुछ है। The rest is a world of illusion. बाकी की जो दुनिया है वो भ्रम है। Without poetry, कविता के बगैर even our religion and philosophy are hollow. यहां तक कि हमारा धर्म और हमारा तत्व शास्त्र, हमारा चिंतन शास्त्र वो खोखला है। What Arnold emphasizes is that जिस वस्तु पर मैथ्यू आर्नल्ड
हमारे सम्माननीय आदरणीय आज के आलोचक विवेचक मैथ्यू आर्नल्ड जिस बात पर जोर देते हैं, महत्ता रखते हैं, वो ये कि इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, कविता के क्षेत्र में, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफीरियर एंड एक्सीलेंट, बिल्कुल निकृष्ट, निम्न और सर्वोत्कृष्ट के बीच का जो फर्क है, इज ऑफ सो ग्रेट एन इंपॉर्टेंस, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट चार्लेटनिज्म कैन फाइंड नो स्कोप हियर, कि यहां पर किसी भी चीटिंग के लिए कोई अवकाश नहीं है, यहां पर किसी भी स्कीम के लिए, प्लॉटिंग के लिए, किसी भी योजना के लिए कोई अवकाश नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए मैथ्यू आर्नल्ड प्रिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। इन चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए आर्नल्ड अपने एस्टिमेट्स हमारे सामने रखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। आर्नल्ड इज वेरी मच कंसर्न्ड विद द रियल एस्टिमेट ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। मैथ्यू आर्नल्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वे अपने 3 एस्टिमेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनका पहला एस्टिमेट है रियल एस्टिमेट ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, बट दिस रियल एस्टिमेट मे बी सस्पेंडेड बाय 2 अदर काइंड्स ऑफ एस्टिमेट। लेकिन ये जो रियल एस्टिमेट है वो दूसरे 2 एस्टिमेट के कारण प्रभावित होता है, अत्यंत प्रभावित होता है, और वो 2 एस्टिमेट हैं, हिस्टोरिक एस्टिमेट एंड द पर्सनल एस्टिमेट। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एस्टिमेट, और पर्सनल एस्टिमेट यानी कि व्यक्तिगत एस्टिमेट, व्यक्तिगत अंदाजा लगाना और ऐतिहासिक अंदाजा लगाना। ऐतिहासिक अंदाजा लगाना और व्यक्तिगत अंदाजा, ये हमारे 2 अप्रोच हो सकता है कि हमारे रियल एस्टिमेट को, वास्तविक अंदाजे को प्रभावित करें, अत्यंत प्रभावित करें। बोथ ऑफ विच आर फॉलेशियस एंड एरोनियस। मैथ्यू आर्नल्ड यहां पर यह भी कहते हैं कि रियल एस्टिमेट को छोड़ करके हिस्टोरिक एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट, ये दोनों त्रुटि युक्त हैं। इन दोनों में कहीं कुछ गलतियां हैं, विषमताएं हैं, विडंबनाएं हैं। एक्सप्लेनिंग द फॉलेसी ऑफ द हिस्टोरिक एस्टिमेट, ही सेज, हिस्टोरिक एस्टिमेट की त्रुटियों को, गलतियों को का अर्थघटन करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशंस लैंग्वेज, थॉट एंड पोएट्री इज प्रोफाउंडली इंटरेस्टिंग। किसी भी राष्ट्र की भाषा, विचार और कविता अत्यंत प्रभावशाली होती है, और साथ ही बाय रिगार्डिंग अ पोएट्स वर्क एज अ स्टेज in this course of development, we may easily bring ourselves to make it important as poetry than in itself it really is. We may come to use a language, हम एक ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, of quite exaggerated praise, कि जिसमें प्रशंसा तो है लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। In criticizing it, उसकी आलोचना करने में, short टू ओवर रेट इट, भले संक्षिप्त हो लेकिन वो ओवर रेट मानी जाएगी, वो उसमें अतिशयता होगी, उसमें अतिशय अंदाजा होगा। दूसरी तरफ पर्सनल एस्टिमेट को एक्सप्लेन करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड और कहते हैं अवर पर्सनल एफिनिटीज, लाइकिंग्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, हमारे व्यक्तिगत संयोग हैव ग्रेट पावर टू स्वे अवर एस्टिमेट ऑफ दिस। हमारी जो व्यक्तिगत पसंद हैं और संयोग हैं, उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि हमारे जो एस्टिमेट होता है, हमारा जो अंदाज़ा होता है एक कवि के लिए, उस पर वो हावी हो जाती हैं, ऑफ दिस और दैट पोएट्स वर्क, इस या उस कवि की कार्यों पर, एंड टू मेक अस अटैच मोर इंपॉर्टेंस टू इट, और हमें बाध्य कर देती हैं कि हम उन कवियों के प्रति हमारी व्यक्तिगत पसंद को ज्यादा महत्व दे करके उस कवि को हम ज्यादा महत्व दें। एज अ पोएट्री
than in itself it really possesses. उस कविता में उतनी ताकत नहीं होती है अपील करने की, लेकिन हमारी व्यक्तिगत पसंद हम पर हावी हो जाती है और हमारे विचार को बायस्ड बना देती है. वी बिकम प्री ऑक्यूपाइड, वी बिकम बायस्ड, वी बिकम प्रेजुडिस्ड बिकॉज ऑफ आवर personal affinities, likings and circumstances. Because to us it is or has been of high importance. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पर्सनल एफिनिटीज, लाइकिंग्स हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. Here also we overrate the object of our interest and apply to it a language of praise which is quite exaggerated. यहाँ पर भी हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिस भाषा में हम विवेचना करते हैं, जिस भाषा में हम आलोचना करते हैं, in whichever language we criticize, that language is also biased, is preoccupied or quite exaggerated. Arnold is very much concerned with the real estimate of a work of art. Besides these two estimates, personal estimate and historic estimate, what Arnold defines from the core of his heart, what Arnold takes part of the estimate is the real estimate of a work of art. What he means by the real estimate of a work of art, he says, by the real estimate, Arnold means that constantly in reading poetry. My dear friends, listen to and read this slide very carefully. That constantly in reading poetry, जब आप हमेशा लगातार कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता के बारे में आप अच्छी तरह से with all your heart उसे समझें, पढ़ें. A sense for the best, आप में अच्छे के लिए, सर्वोत्कृष्टता के लिए एक सेंस हो, एक बुद्धि हो. That wisdom should lie. The next thing, the really excellent, जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट है,